नमस्ते स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम। आपका स्वागत है 10th क्लास के मैथमेटिक्स सेक्शन में इन द चैनल @फ्यूचर सेवर academy. So students, yesterday we had discussed the chapter number 4, quadratic equations, and just 2-3 days back we have discussed the R.D. Sharma maths, in which the first chapter we have discussed. Now from the R.D. Sharma mathematics we will today discuss the chapter number 2, and also from the mathematics NCERT mathematics book we will discuss the chapter number 5th of arithmetic progression. Arithmetic progression is very interesting and scoring chapter for 10th class students, and chapter number 2 for the polynomials, we will say polynomials in the R.D. Sharma maths. It's a very also urgent for you students. So let's start the first of all polynomial chapter number 2, polynomials. And in polynomial chapter in our channel of @Future Saver Academy, please those students which didn't subscribe the channel, you urgently subscribe it and show the you can check the change that which will happen in doing the sums or understanding the sum. So these are the sums based on the polynomial chapter, and it is given to you. These are the graphs, and these are the graphs which is to be shown here like this. Y is equal to fx, and this is x-axis, x dash, this is y and y dash, and there is a origin. And this question is, which type of a graph is this, whether this is a linear polynomial or quadratic polynomial. Now this graph y is equal to fx means, students, let's see, wait for a while, and this is, let y is equal to fx. This fx corresponds to parabolic, and this shape, students, this shape is called parabolic shape, because some shape is a straight line, some shape is maybe circular, and this is a parabolic shape. This is shape is called, इसको बोलते हैं parabolic shape. And parabolic shape is that in which, and we can say coefficient of, here is a coefficient of x square is positive, x square is coefficient is positive, and if coefficient of x square is positive in this parabolic shape, then this is a quadratic polynomial. So we want to check which type of it is a polynomial. Fx is, here is a quadratic polynomial in which coefficient of y square is positive. Then this is the second one. This is x-axis, x dash, y and y dash. Now this is the line given to you. It's a y is equal to gx. It means y depends on the x polynomial. And now this is a straight line. This is a straight line. And if it is a straight line, so straight line suggests that gx is a linear polynomial. It's a linear polynomial, straight line suggests that. Now third graph also shown. It is depicted now like this. This is the graph. Sorry, this is the graph like this. This one. So this is given to you x dash, y dash, origin, and this graph is y is equal to px. And now this line, this curve suggests that it is neither parabolic or nor a straight line. So this is not any type of a linear, neither linear nor quadratic. It is neither linear nor quadratic. So these are the sum, students. Now we will discuss the more sum based on the relationship and the coefficients of a polynomial that we have already discussed in NCERT mathematics. Today we will discuss more, and after that we will discuss the chapter number 5. That's the name of chapter number is arithmetic progression from the NCERT mathematics.
So now from the R.D. Sharma maths, we will discuss the zeros of the polynomial. So find the zeros. Please connect your चैनल, कनेक्ट यूर होल वीडियो अप टू द एंड, साथ एंड तक बने रहना, आपको सभी तरह का पता लग जाएगा। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, बीच में आपने वीडियो को छोड़ के नहीं आना, फिर कुछ नहीं पता लगेगा। इसको अच्छी तरह से देखना। एक्स स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 को जीरोस लेनी है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। जीरोस एंड कोएफिशिएंट में से रिलेशनशिप भी आपने वेरीफाई करने हैं। तो अभी देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे उनके होंगे। तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस 7x जो इसका सोल्यूशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को फैक्टर बना लो आप। 7 को आप लिख सकते हैं 4 प्लस 3। हाउ 4 प्लस 3? बिकॉज आपने करना क्या है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1 और ये लास्ट है 12। 1 और 12 की मल्टीप्लाई करके हमने 12 बना लेना है और उसके फैक्टर ऐसे बनाने हैं, ऐसे। और ये फैक्टर बनाने के बाद हमने ये 7 जो बीच वाली मिडिल टर्म है, दूसरे नंबर पे टर्म आती है 7, कोएफिशिएंट आता है। तो ये जो फैक्टर बनाए हैं उनमें से 2 फैक्टर लेने हैं ऐसे कि दोनों को या तो जोड़ दो आप, ऐड कर दो, और या माइनस कर दो। प्लस करने या माइनस करने के बाद उनका कितना आना चाहिए, वो 7 आना चाहिए। तो हमने देखा एक 2 ले लिया, एक 3 to the 6 ले लिया, 6 और 2 लिया, तो 6 प्लस 2 कितना होता है आपको मालूम है 8। ये नहीं आएगा, एक आप ये ले लो 2 to the 4, एक 4 ले लो, एक दूसरा कितना ले लो 3, तो 4 प्लस 3 क्या आ गया 7। x हमने साथ में डाल दिया, x कॉमन आ गया यहाँ पर, x प्लस 4, यहाँ से 3 कॉमन, क्योंकि 3 के टेबल पर 12 भी आता है और x भी आता है, यहाँ पर x बच गया और 3 4 द 12। तो ये आ गया आपका x प्लस 3 और ये आ गया x प्लस 4 आउटसाइड द जो टर्म ब्रैकेट के बाद है वो लिखती। अब इसके बाद जो जब जीरोस इसकी लिखनी है, जीरोस आर, तो इसको जीरोस के इक्वल रख दो, x प्लस 3 0 और x प्लस 4 0, और x आपका कितना आ गया -3 दूसरी तरफ जाकर, और x इसका कितना आ गया -4। जो जीरोस आ गया, जीरोस आने के बाद हमने क्या करना है, सम ऑफ जीरोस भी लेना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेना है। एक तो सम ऑफ जीरोस वैसे ही लेंगे ऐसे, -3 -4 ब्रैकेट में डाल दो, तो क्योंकि माइनस का साइन है, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, ये बन गया -3 -4 -7। एक हमारा फॉर्मूला भी होता है सम ऑफ जीरोस का, जिसमें हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस और कोएफिशिएंट्स का। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ, आपका होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, उसके ऊपर क्या लगाते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का आपका कोएफिशिएंट है कहाँ स्टेटमेंट में, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है माइनस, ये आ गया माइनस का साइन ऐसे लग गया 7, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है -7/1 -7 आ गया। तो ये सम ऑफ जीरो भी -7 आया था, यहाँ पर सम ऑफ जीरो भी -7, इसको वेरीफाई कर दिया। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने क्या करनी है, जीरोस की प्रोडक्ट मालूम करो। -3 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस माइनस प्लस 3 4 द 12 मल्टीप्लाई 12, एंड आल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस द फॉर्मूला इज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस it is a constant term, and constant term divided by coefficient of x square, and constant term, you know, constant term is 12 and coefficient of x square is 1, 12/1 is 12. So these are the zeros, -3 and -4 the zeros, and this is the relationship verification between the sum of zeros and the product of zeros. Product of zeros 12 and sum of zeros is -7 and -7 in both cases. Now we will discuss the sum zeros of question. Next question, find zeros of 6x square -3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. Verify the relation between the zeros and coefficient. Now how we can calculate zeros? Zeros for the solution, students, 6x square -3 we can write, students, it's a square. 6 is square of square root 6, and x is x square, -3 is a square root 3 square, and now there is a formula of a square minus b square, which is known to be a minus b, a plus b. So a is our √6x, b is our square root 3, because square root 3 square is square root 9, 3 3 are 9, square root of 9 is 3,
and now this is a minus b means square root 6x minus square root 3, and then square root 6x plus b means square root 3. Now zeros are, so how do we calculate zeros? So zeros are means equal to, each term becomes 0. This term is 0 and under root 6 plus under root 3 is equal to 0. So this is under root 6 is equal to minus square root 3, to the right hand side become plus square root 3, and x is equal to square root 3 over square root 6. This cancel, 3 6 3 0 6 1 over square root 2. Similarly, this under root 6x is equal to plus square root 3, on the right hand side become the minus under root 3 minus square root 3, and x is equal to minus 3 under root over under root 6. It is a minus 1 over square root 2. This is square 1 over square root 2, and this is 1 over minus 1 over square root 2. Now we will discuss their relationship now. Relationship means verification. So verification, how the verification becomes? In the verification, first of all, sum of zeros. Zeros are, first of all, 1 over square root 2, and second is minus 1 over square root 2. Same value plus minus, this cancel is equal to 0. And now also sum of zeros. What is the formula sum of zeros? You know sum of zeros, the formula is minus coefficient of x over coefficient of x square. And what is coefficient of x, student? X coefficient no more is there, because equation is 6x square minus 3. इसमें x नहीं है, x अकेला नहीं है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x अकेला नहीं है, दैट्स व्हाई इसका कोएफिशिएंट x का है ही नहीं, तो वहां बन गया 0. तो ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, वे बन गया 6. 0 over 6 minus sign, that is 0. तो sum of zeros verified, and also product of zeros. Then product of zeros means 1 over square root 2, and second is also 1 over square root 2. 1 over square root 2, 1 over square root 2, 1 the 1, square root 2 is equal to 2. 2 to the 4, square root 2, square root 4 is 2. And also product of zeros, from the formula, let's see, product of zeros is equal to constant term. It's a constant term divided by coefficient of x square. What is constant term, students? Constant term is minus 3, and what is constant? There is a 1 over square root 2, 1 over minus 1 over square 2. So minus 1 the minus 1, and now the constant term is minus 3, and coefficient of x square is x square coefficient how much? 6. 3 1 the 3, 3 2 the 6, this cancel. It's a minus 1 over 2. So therefore product is verified and sum is also verified. Sum is 0 and product is minus 1 over 2 minus 1 over 2. That is the verification. And now that there is a one more questions from the R.D. Sharma maths. We are doing the R.D. Sharma maths for the chapter number 2 polynomials, and very important sums. तो आप जरूर ट्राई किया करो. आप अपनी एक नोटबुक लगा लो छोटी सी, उसमें 10 मिनट लगा के आपने पूरी वीडियो को देखने के बाद जल्दी ही उसके 10 मिनट में 2 या 3 अपने सम कैलकुलेट कर लेने हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. इसके बाद हम R.D. शर्मा के बाद करने के बाद एनसीईआरटी का अभी आज चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे. पूरी वीडियो को देखते रहना. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने चैनल को @फ्यूचर सेवर अकेडमी को, आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए. आगे वाला सम है हमारा फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल है आपका 4u square plus 8u, and then after that relationship verification. Relationship verification is there. So 4u square plus 8u, how we can write? It is a 4 common, because 4 1 the 4, 4 2 the 8, 8 in 8 there is a 4 also. So u is also common. So u square, u is common, so u is left, and then 4 multiply with how much number? 2, 4 2 the 8. So it is u plus 2. Now zeros are whether 4 is equal to 0, u is equal to 0, whether first number 0, second number 0, or u plus 2 is equal to 0. 4 not equal to 0, 4 0 नहीं होता, u is equal to 0 हो गया, and u is equal to plus 2 on the right hand side become the minus 2. So 2 zeros are there. One u is equal to 1, u is equal to 0, and second value of u is equal to minus 2. Now we will do the verification. Sum of zeros, one is 0, second is minus 2.
zeros, we want to find the zeros of the polynomial. Zero means the values are the roots, and the zeros of the this polynomial is zero. Yeah, zero is zero. 0 plus minus 2, sum, we are doing the sum. 0 plus minus 2, it is a minus 2, because plus minus minus 2. And also sum of zeros. Sum of zeros, the formula is, it's a minus coefficient of, earlier case we were applying the earlier case coefficient of x. Now the polynomial in u, so this is a coefficient of u over coefficient of u square, and there is a coefficient of u. How much coefficient of u? U coefficient is minus 8, 8, coefficient is 8, and coefficient of u square is 4. This cancel, 4 1 the 4, 4 2 the 8, so minus 2. So sum is verified, minus 2 minus 2. Now we will do the product of zeros. Product of zeros means we do the product. First zero is 0 and second zero is minus 2. Product 0 multiplied by any number becomes 0. And now also the formula of product of zeros, we know the formula of product of zeros. How much, students? How we can write? It's a constant term. Yes, students, constant term divided by coefficient of u square. Constant term divided by coefficient of u square. And constant term is not given there. If constant term is not given there, then it's a 0. Then coefficient of u square coefficient is 4. So 0 over 4 is equal to 0. So this is also 0, product also 0. That is the verification of this particular part. Now we will do very two important sum. That sums are the part of the CBSE exams from the previous years, and please understand these sums. The first is the product of the polynomial. Question is, if the product of polynomial polynomial is how much? How polynomial is to be written? Ax square minus 6x minus 6 is ax square minus 6x minus 6 is 4. Means product is given 4. Find the value of a. Find the value of a. Product is given. So yes, students, now product is, how you know product? Product of, in the solution, product of given polynomial, the formula is, product of given polynomial in the solution. What is the formula product? It is equal to constant term divided by, students, which value? Divided by coefficient of x square. X square is x square. So constant term is this minus 6 over coefficient of x square is a. Now this is a. So this is minus 6 over a. Also product given to you. Product is also given. Also product is 4. Product from the formula, product is minus 6 over a, and from the given value it is 4. So both values we can equate. Minus 6 over a is equal to 4, because this is the given value in the statement, and this we calculated value minus 6 over a from the product. So now this is a goes to the 4 position and 4 comes to the a position. Interchange a and 4 side by side. To cancel out now, 2 3 the 6, 2 to the 4. So a is equal to minus 3 over 2. This is the value of the a, which is equal to minus 3 over 2. Now one more example, or you can say question. If 1 0 of the polynomial, if 1 0 of the polynomial, if the 1 0 of the polynomial, and the polynomial is given to you, students, a square plus 9, this is the polynomial, a square plus 9 x square plus a square plus 9 x square plus 13x plus 6a. This 1 0 of this polynomial is the reciprocal of the other. एक जो पॉलिनोमियल, इसकी ये पॉलिनोमियल की जो जीरो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है. रेसिप्रोकल मतलब उल्टा दो अगर एक जीरो को दूसरी को, तो ये पॉलिनोमियल
की जीरो दी हुई है इस पॉलिनोमियल की, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है इस सॉल्यूशन में। तो आपको मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने लिख लेनी है पहले, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो जीरोस हमने एक जीरो मान लेते हैं हम, इसकी कोई भी जीरो मान लो, एक जीरो मान लेते हैं हम इसकी, सपोज कर लो आप जीरो, एक अल्फा वैल्यू है अल्फा कोई, दूसरी है बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने अल्फा बीटा लिख दी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, वो होता है आपका कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आ गया अल्फा बीटा, जीरोस की प्रोडक्ट होगी मल्टीप्लाई, कांस्टेंट टर्म यहां पर कितनी है 6 है, और आपका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कितना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है ए स्क्वायर प्लस 9। ये होगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आपको मालूम है कि जो प्रोडक्ट एक आपका जो एक जीरो है ना बीटा, वो दूसरी जीरो अल्फा, अल्फा की क्या है रेसिप्रोकल, तो बीटा क्या है आपका 1/अल्फा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा और बीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, और अल्फा बीटा की ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा यहां पर। ये देखो इधर देख लो आप, अल्फा बीटा की ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो। अल्फा बीटा आ गया आपका 6a, ये बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस 9। यस स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड केयरफुली, अल्फा बीटा की ये वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू 1। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया 6a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9 हो गया। अब आप ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a लिख लोगे, और 6a को आप इधर माइनस करके ले आओ प्लस 9। अब इसके फैक्टर बना लो, ए स्क्वायर माइनस 6 को लिख सकते हो आप 3a और 3a, माइनस 6 हो जाता है प्लस 9। ये कॉमन आ गया, इसमें से कॉमन क्या है ए कॉमन, ए माइनस 3, यहां से आपको कॉमन क्या मिल गया 3 नंबर कॉमन है, बिकॉज 9 भी 3 के टेबल पे आता है, यहां पर भी 3 आता है, और माइनस कॉमन ले लो आप माइनस यहां पर कॉमन ले लिया तो ए बच गया। अब माइनस को किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि 9 बन जाए, -3 के साथ, ये माइनस 3 हो जाएगा, इसका 0 बन गया। और आउटसाइड द ब्रैकेट्स लिख लो आप a-3, एक ब्रैकेट जो कॉमन है वो लिख दो a-3। तो आपका a-3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा भी a-3 इज इक्वल टू 0, और a आपका उधर जाकर 3 आ गया, दूसरा भी 3 आ गया, -3 दूसरी तरफ जाकर आपका 3 आ गया। तो ये था हमारा जो इसके बेस के ऊपर सम कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द मोस्ट वेरी सिंपलेस्ट चैप्टर ऑफ दिस 10th क्लास मैथमेटिक्स NCERT book. The name of the chapter is arithmetic progression. So don't skip the video, don't try to unwatch the video, try to watch the video at the end so that we can understand the chapter number 5. The name of the chapter is arithmetic progression. Chapter number 5, it is called the arithmetic progression. In the simple form, it is called AP. It's very AP. So we are discussing the example like this is a 2, this is 5, this is 8, this is 11. Now after that, most of the students have the answer. What will come? Yes, 14, and so on. So subtracting first term from the second, 5 minus 2, this is 3, then 8 minus 5, third minus second 3, 11 minus 8, it is also 3, 14 minus 3, 11 is equal to 3. When the difference is same in any of the series, that is called the arithmetic progression. When there is a difference denoted by D letter, and the first term is denoted by A. So any series, we can take the one more example. There is a 1, there is a 5, there is a 9, and the other number is, yes students, you got the answer 13, then there is a 17, there is a 21, and there is a difference same. 5 minus 1 is 4, 9 minus 5 is 4. आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 4, 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 4, then 13 minus 9 4, 5 minus 1 4, 4 4 4. So this is called called arithmetic progression. And in exercise 5.1, we will discuss whether this is the arithmetic series or not, and why it is arithmetic series or not. The first question is,
the taxi fare after each kilometer, हर एक किलोमीटर के बाद जो टैक्सी फेयर है तो वो वहां पर दिखा है, आपको देख रहे हो आप, व्हेन द फेयर इज ₹15, फेयर क्या है, 15 रुपीज है, एंड फॉर द फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है, एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपए ज्यादा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये क्या सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तो फर्स्ट है ₹15, आगे क्या बन जाता है, अगले किलोमीटर, ये पहले किलोमीटर के लिए 15 है, आगे लिए 15 + 8 होगा, क्योंकि 8 किलोमीटर एडिशनल ऐड हो रहे हैं आगे किलोमीटर के लिए। थर्ड किलोमीटर के लिए आ गया 15 + 8, ऐसे ही आ जाएगा सो ऑन। तो ये बन गया ₹15, ये ₹15 + 8 23, ये आ गया 15 + 8 23, 23 + 8 31। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर डिफरेंस सेम है, 23 में से -15 किया 8, 31 में से 23 किया 8। तो यस, it is an arithmetic progression, or in the next upcoming section we will write in the short form AP, and reason क्या है, because difference is same, इसका रीजन क्या है, difference is same, that's why it is an AP. So let's discuss one more part of this exercise 1.5.1, and after that we will start the second part of the sum, and the most important one is second sum. Now the amount of air present in a सिलेंडर में जो अमाउंट है, सिलेंडर की आज दिनों में बहुत किल्लत चल रही है पूरे इंडिया में। आपको मालूम है कि अमेरिका और ईरान की जो इजराइल की वॉर लगी हुई, वहां पर होने के कारण सिलेंडर की कमी आ रही है। तो चलो हमारा क्वेश्चन भी उसके बेस पे है, अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप, जो हवा निकालने वाला पंप होता है, वो क्या करता है, रिमूव्स 1/4 of the air remaining in the cylinder, सिलेंडर में उसकी 1/4 पार्ट एयर का निकल रहा है एट ए टाइम। तो इसकी क्या सीरीज होगी और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, जो स्टेटमेंट बताई है। तो हमें पता है जो अमाउंट ऑफ एयर है, अमाउंट ऑफ एयर को बोलते हैं वॉल्यूम। तो पहली स्टेज में वॉल्यूम V होगा, दूसरी में वॉल्यूम 1/4 माइनस कर दिया, क्यों, V का, क्योंकि 1/4 पार्ट निकल रहा है, वो एयर निकल रही है पंप से, वैक्यूम पंप से, V में से 1/4 V पार्ट निकल गया। तो यहां इसके बाद आ जाएगा जो पार्ट निकल गया थर्ड स्टेज में, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और आगे वाला वो स्क्वायर उसका क्यूब बन जाएगा। इतनी हवा अगले सब्सिक्वेंट स्टेप में उसमें रिमूव हो रही है सिलेंडर में से। तो यहाँ पर V बन गया, यहाँ पर 4 एलसीएम, ये बन गया 4V आपका -V, और यहाँ भी आपका बन गया 4V -V का स्क्वायर, ये बन गया 4V -V का क्यूब, और सो ऑन। ये बच गया आपका V, यहाँ पर 4V में से V गया 3V/4, आगे आ गया आपका 3V/4 का स्क्वायर, आगे आ गया 3V/4 का क्यूब। ये बन गई सीरीज। अब देखो ये इसका डिफरेंस सेम है कि इसको सेकंड में से या फर्स्ट माइनस करते हो, 3V/4 में से V माइनस करो आप, 4 एलसीएम, तो 3V यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बन गया 4V, 3V - 4V यहाँ पर बन गया -1V -V। अब ऐसे ही इसको माइनस करो थर्ड में से सेकंड, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और V का स्क्वायर हो गया V², ये बन गया 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16। उसमें से क्या माइनस करना है, 3V/4, तो 60 और 4 का एलसीएम आपका आ जाएगा 16, और 16 के साथ डिवाइड कर दो, यहाँ पर आ गया 9V², और 4 आप 16 से डिवाइड कर दो, 4 16 से डिवाइड करके कितना आ गया 4, और 4 को 3V से मल्टीप्लाई करके 12V। आगे ये सॉल्व नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये V² वाली टर्म है, ये V है, तो V² V वाली टर्म से सॉल्व नहीं होगा। तो इसका डिफरेंस जो दूसरी में से माइनस किया था, -V/4 आया था,
अब तीसरी में से दूसरी माइनस की है, ये इतना है, ये सेम नहीं है डिफरेंस, ये सेम डिफरेंस नहीं है, तो ये एपी नहीं है, तो हम इसे लिखे देंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, इट इज नॉट एन एपी। एपी की मतलब फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये सीरीज नहीं है, बिकॉज इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज जो डिफरेंस है वहां पर लिख लोगे आप डिफरेंस इज नॉट सेम, तो डिफरेंस इसका सेम ना होने के कारण ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स और क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं जो मैथमेटिकली फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्म में हम करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज डोंट skip the video, now see the video at the last, only 2-3 minutes are left. Write 4 terms of the AP, first 4 terms of AP in A is equal to 10 and D is equal to 10, 4 terms. The first term is 10, second term is obtained by adding common difference D to the first term. ये D common difference D है जो 10 से, ये 10 फर्स्ट टर्म में ऐड कर दो तो 10 + 10 हो गया, तो आगे वाली टर्म क्या होगी, जो दो टर्में पिछली वाली बनी है उसमें से फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, ऐसे ऐसे कॉमन डिफरेंस अगर ऐड करी जाओगे तो नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन हो जाएंगे। ये 10 हो गया, 10 + 10 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 4 टर्म्स हो रही थी उन्होंने, 20, 30, 40, 50, 5 टर्म्स आ गई जब इसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो। अब आप इसका एक और पार्ट देखो, आप A 4 है और D आपका -3 है, तो पहली टर्म आपकी कितनी है 4, दूसरी आ गई 4 + -3, ये आ गई 4 प्लस ये -3, फिर दो टाइम ऐड कर दो, फिर आप तीन टर्म ऐड कर दो, और फिर आप लास्ट में अगर 4 टर्म लेनी है तो आप 4 बारी ऐड कर दो इसको, तो मैंने 4 बारी इसको ऐड कर दिया, तो ये बन गया 4 -3 प्लस माइनस माइनस 4 -3, ये आ गया 4 + -3 और प्लस माइनस -3, ये आ गया 4 -3 और -3, ये आ गया 4 -3 अब इसको सॉल्व कर लो, 4 -3 1, तो -3 -6 + 4, 6 में से 4 गया तो -2, आगे आ गया -3 -9 + 4 -5, ये आ गया -12 + 4 -8, ये आपकी टर्म्स आ गई। तो ऐसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक पार्ट और देखो स्टूडेंट्स, a = -1 है, d आपका है हाफ, तो आप ऐसे लिख सकते हो, पहली टर्म है -1, दूसरी हो जाएगी -1 + 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अकेला और फिर उसमें हाफ ऐड कर देंगे, तो -1 + 1/2 ऐसे लिख लो इधर साइड पे, ये 2 एलसीएम आ गया, ये बन गया आपका -2 प्लस ये बन गया 1, ये बन गया -1/2, तो ये -1/2 है, तो -1/2 में से कितना ऐड करना है आपने, +1/2, क्योंकि इसको सॉल्व करके -1/2 आया, उसमें हमने डी ऐड करना है ना अगली टर्म कैलकुलेट करने के लिए, ये 1/2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, जिसका उसका आंसर आ जाएगा उसमें यहाँ पर आंसर लिख के वहां पर डी उसको फिर ऐड कर देंगे, तो -1/2 और +1/2 ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया स्टूडेंट्स, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, यहाँ पर 0, उसमें ऐड कर दो आप 1/2, और 0 और +1/2 ऐड होके 1/2 आ गया, और इसमें 1/2 ऐड कर दो, और 1/2 और 1/2 कितना हो गया, ये भी अद्धा है, ये भी हाफ है, अद्धा हाफ कितना हो गया 1, और 1 में से आप ऐड कर दो 1 + 1/2। अब इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा, -1 यहां पर आपने देखा था, -1 + 1/2 को सॉल्व करके कितना आया था, इससे -1/2 ये बन गया था, -1/2 + 1/2 0, प्लस माइनस कैंसिल हो गए थे, 0 + 1/2 आपका 1/2 आ गया, हाफ ऐड करके आपका 1 बन गया, और 1 + 1/2 को ऐड करोगे आप 3/2 आ गया, आपकी 4 टर्म बन गई। जितनी भी कैलकुलेट कर, हम 5 कर ली हमने, कोई बात नहीं, एक ज्यादा कर ली है, 1 2 3 4 5, तो कम तो नहीं हुई ना, ज्यादा होगी, अच्छी बात है, क्योंकि आपको समझ लग रही है। अब आगे आपने सम में क्या देखना है स्टूडेंट्स, बस हमारा 1-1.5 मिनट का टॉपिक रह गया है जस्ट, तो आपकी जो एक्सरसाइज 5.1 दैट इज टू बी कंप्लीट नाउ कॉमन डिफरेंस आपने देखना है थर्ड सम में, और उसकी कॉमन डिफरेंस और उसका फर्स्ट टर्म निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, फर्स्ट टर्म कितनी, ए से लिखते हो आप, फर्स्ट टर्म ए बन गया 3, और कॉमन डिफरेंस डी आपका कौन सा होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, सेकंड 1 - 3 लिख दिया, 1 - 3 कितना है -2, ये बन गया आपका। अब इसका दूसरा पार्ट देख लो आप, इससे -5 -1
और 3 और 7। इसमें भी आपने फर्स्ट टर्म कैलकुलेट, फर्स्ट टर्म ए से लिखते हैं हम, फर्स्ट टर्म जो पहले नंबर पड़ी है -5, और डी आपका कॉमन डिफरेंस है। जो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं। फर्स्ट सेकंड आपका -1 है, माइनस कर दिया फर्स्ट, फर्स्ट आपकी -5 होने का ब्रैकेट में डाल दो, तो ये बन गया -1 माइनस माइनस +5, 5 में से 1 गया 4, कॉमन डिफरेंस आपका 4 आ गया। तो ये इसके बाद है आपका 4 सम, जिसमें हम चेक करनी है कि एपी है कि नहीं। अगर है तो कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करके उसकी आगे वाली 3 टर्म और कैलकुलेट करनी है। पहले हमने देखना है कि ये एपी है कि नहीं। यहां पर है 2, 4, 8, 16। अब देखते हैं कि ये एपी है कि नहीं। एपी में हमने क्या देखना होता है कि 4 - 2 और 8 - 4 सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करे और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करे। तो 4 माइनस से 2 गया तो 2 आया, 8 - 4 4 आया। ये एपी नहीं है, तो नो इट इज नॉट एन एपी। अगर एपी नहीं है तो यहां पर इस हमको लीव कर देना है, छोड़ देना है। अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और 4 टर्म और निकालनी है। जैसे है आपका 2, 5/2, 5/2, 3 आ गया आपका 7/2 और सो ऑन। तो आपने यहां पर देखना है 5/2 में से -2 कर दिया, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दी, और तीसरी में से 3 में से आपने दूसरी टर्म माइनस कर दी 5/2। तो यहाँ पर 2 आपका एलसीएम आ गया, ये बन गया 5, 2 to the 4 आ गया आपका, 2 एलसीएम आ गया, 3 to 6 आ गया -5, 5 में से 4 गया 1/2, ये भी 6 में से 5 गया 1/2। ये सेम आ गया, इसको बोलते हैं डी इज सेम, कॉमन डिफरेंस डी इज सेम आया भी कितना है हमारा 1/2। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स आपने कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट 4 टर्म्स कैसे कैलकुलेट करोगे, जो आपकी डी वैल्यू आई है वो आपकी लास्ट वैल्यू में आप ऐड कर दो। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी 7/2, और उसमें ये 7/2 में 1/2 ऐड कर दो आप, जो इतना आएगा उसको आगे ऐड करना ना, ये मैंने रफ में बता रहा हूं मैं। 7/2 1/2, 2 एलसीएम आपका, ये आ गया 7 + 1, 7 + 1 8/2, कैंसिल होकर कितना आ गया 4। अब ये टर्म 4 बन गई, तो 4 में से 1/2 ऐड कर दो, फिर देखो आप कितना आ गया। यहां पर देखो 4 + 1/2, 2 एलसीएम 4 to the 8 + 1, ये आ गया 9/2। तो ये आ गया आपका 9/2, उसमें 1/2 ऐड कर दो। तो इधर देखो 9/2 + 1/2, ये आ गया 2 एलसीएम 9 + 1 10, 10/2 कैलकुलेट करके कितना आ गया आपका 5। ये 5 आ गया, तो 5 में से आप 1/2 और ऐड कर दो और इसको सॉल्व कर लो। ये 7/2 + 1/2 मैंने सॉल्व किया था, कितना आया था 4। ये 4 + 1/2 यहां से सॉल्व किया था, ये आ गया आपका 9/2, 9/2 + 1/2 यहां पर सॉल्व किया था, आ गया 5, और 5 + 1/2 को मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, ये आ गया 2 आपका एलसीएम 5 to the 10 + 1 11/2। ऐसे हम कॉमन डिफरेंस पहले चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट टर्म और थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करके आता है कि सेम नहीं। अगर सेम आ गया तो 4 टर्म्स आपने क्या करनी है, कैसे कैलकुलेट करनी है, जो कॉमन डिफरेंस आपका आया वो लास्ट टर्म में ऐड करके नेक्स्ट उसको कॉमन डिफरेंस को आगे आगे ऐड करना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा बहुत इजीएस्ट चैप्टर में से गिना जाएगा। आपको समझ लगी होगी, आपने जरूर इसकी प्रैक्टिस करनी है, जरूर इसको देखना है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपने चैनल से जुड़े रहना, आगे भी @FutureSaver Academy को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।